Hi, this is Amish Sharma, and today I'm going to make this video for second sem for electrical technology. In last class, I've also given you the lots of views and idea about the machines, but now here we will study about the types of machines and how is it work in nowadays. So basically here we will discuss about the types of machines, the basic principles of machines, and the types of machines. That is the most important thing for you. And I think you all guys are there in first year, so you don't need have to study the all about the machines in brief, in depth. So here we will discuss only in the basic ideas, and this video is I will try to cover the all topics related to your syllabus, and I think you all guys are follow this carefully, and hope this will create a very much intention for you. So let's here starting. I'm starting here. Question is that what is machine? This is the first question arises in your mind. What is the machines and how is it work in your daily life, in your home and in your neighborhood? You may see that lots of things that is surrounded by you, machines like a fan, TV, motors, household motors that you are using in as a pump. So these are the types of machines, and have you ever familiar with them? If some of them in your colony or your relatives who has worked out on it. So here, in simple word, we can say that the electrical machines convert the electrical energy into mechanical energy, or vice versa. A transformer is also electrical machines. A motor is also electrical machines, and every machines having the same motors, same intention to give the rotations or give some changes in their internal energy relates, like in when we're talking about the transformer. So transformer is a stationary device which never give you rotations or give you the torque set output, but it will give you the changes in voltage or current further. So let's first discuss the definitions of the machines and what is say about. So here I am writing here the electrical machines, about the electrical machines. A device capable of interconversion between the energy in terms of electrical
electrical and mechanical. Mechanical is called electrical machines. तो यहाँ पे हम लोग को एक आइडिया आ गया है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक चीज़ देख लिए कि जो एज पर योर डेफिनेशंस दिस इज गिवन इन योर बुक सिलेबस एवरीवेयर, so you have got some idea that the device which is capable to interconversion between the energy in terms of the electrical energy and the mechanical energy, or in simple word you may say, in simple word, and electrical machines converts electrical energy into mechanical energy. And vice versa. Okay, so I hope you got it clearly, and now question arises that what type of machines we use in our daily life. So today now I want to discuss about the classification of electrical machines. So this one is the classification of electrical machines. Here we will discuss one by one every topic related to our the machines, and the basically here we are going to discuss about the types of machines and the how many types of machines we used, and the how to differentiate it's on their basic working principles, you may say on their basic speeds, and you may say on supply, based on supply, AC or DC. So first thing, electrical machines. Wait for few seconds. No. So here first one is electrical machines. Electrical machines divided into two parts based on their rotations, or you may say the outputs at shaft. We may classify it into two types.
one is the static machines, and another one is rotating machines. If you are facing some technical issue or video quality is regarding the sound issue, so I will try to do my best, but uh, I was in habitual of taking class in like a offline mode, and right now the situation is something different, and right now I'm taking class on making video online, so it is totally different from the that working style. So that's why we are facing some, especially I'm talking about myself, I'm facing some issues. So in further I will try to enhance my qualities and video quality, and whatever I can do I will try. So you should go throughout the video and study carefully, and here that I am giving you everything, that is the most important things. And so here one is the static machines, another one is the rotating machines. Static and rotating machines. Static machines, if we are talking about the static machines, तुम लोग के दिमाग में एक आइडिया आता होगा स्टैटिक मशीन्स बोलने का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक मशीन्स? द मशीन्स हैविंग दे कांट गिव द आउटपुट एज अ इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क और रोटेशंस. तो ट्रांसफार्मर में किसी तरह का भी कोई भी रोटेशंस और या फिर किसी तरह का भी टॉर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा. मतलब टॉर्क देखने का मतलब नहीं मिलेगा आपको, या फिर किसी तरह का रोटेशन नहीं देखने को मिलेगा. तो ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिकल डिवाइस. ठीक है, स्टैटिकल और रोटेशनल डिवाइस का आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. जब हम लोग इस टाइप की बात कर रहे हैं फिर स्टैटिक्स एंड रोटेटिंग मशीन्स की, तो आप कहोगे कि सर मशीन्स भी तो हमारा एक स्थान पे रहता है. मतलब जो अगर मोटर की बात करोगे तो सर हमारा एक ही प्लेस पे रहता है. ऑब्वियस बात यहाँ पे शाफ्ट की हो रही है, टॉर्क की हो रही है, आउटपुट की हो रही है. ठीक है, तो आउटपुट की अगर बात करें तो मोटर भी हम लोग एक प्लेस पे फिक्स करके रखते हैं, बट उसका जो आउटपुट है, माइंड यू, जो आउटपुट है शाफ्ट है वो हमारा रोटेशन देता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग आउटपुट वी आर टॉकिंग बेस्ड ऑन देयर आउटपुट. आई एम आस्किंग टू टेल मी द ट्रांसफार्मर इज लाइज इन दिस कैटेगरीज, स्टैटिक मशीनरीज और रोटेटिंग मशीनरी. तो आप देखोगे कि आउटपुट में इसका क्या मिलता है. आउटपुट में आपको कोई भी तरह का रोटेशंस, मैकेनिकल प्रोसेस कुछ भी नहीं मिल रही है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्टैटिक मशीन्स. स्टैटिक मशीन्स बोलने का मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं. ओके, नाउ इन रोटेटिंग मशीन्स देयर आर टू टाइप्स. रोटेटिंग मशीन्स बोलने से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जनरेटर में भी हम लोग उसको मूव करते हैं. आप अपने इन योर चाइल्डहुड और मेरे को ऐसा भी लगता है कि अभी आप लोग के घर के आसपास भी एक डीजे हो गया, दैट इज डीजल जनरेटर, जो हम लोग पहले यूज करते थे. इन रूरल एरियाज नाउ डेज इट इज़ अवेलेबल, बट मैनी प्लेसेस इट वाज रिप्लेसेस विद द हेल्प ऑफ, अभी नया मशीन आ गई है. अभी कौन सी मशीन आ गई है? तो आइसर बोलते हैं जिसको हम लोग मार्केट में, या फिर होंडा की छोटी सी आ गई है, डीजी टाइप का आ गई है. उस पर आप लोग, तो जो पहले जनरेटर होता था उसमें हम लोग आउटपुट स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग को उसका जो है एक कपलिंग में उसको रोटेशन करना पड़ता है, एंड तब जाके वो स्टार्ट होता है. तो ये भी हमारा एक जो सिंपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि जो भी मशीन्स जिसका आउटपुट आपको रोटेशन मिलता हो, जिसके आउटपुट साफ से आपको रोटेशन मिलता हो, मतलब एक रोटरी आउटपुट मिलता हो, और जिसके इनपुट में हम लोग स्टार्ट करके कुछ रोटेशन दे रहे हैं. लाइक अगर जनरेटर की भी बात करें तो जनरेटर भी एक रोटरी मशीन है, रोटेटिंग मशीन है. तो इसके जो इनपुट होते हैं, स्टार्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वी ट्राई टू मूव आउट, ट्राइंग टू मूव जो आपका वो साफ होता है उसको हम लोग हैंडल से, विद द हेल्प ऑफ हैंडल हम उसको मूव करते हैं. एंड देन
सडन फिर हम लोग उस पर ये करते हैं। तो ये हो गया। सेकेंड, अभी तो ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग फिर आते हैं हम लोग डीसी मशीन्स पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी दो पार्ट में है। अभी जो हमारा रोटेटिंग मशीन्स है, तो हाँ एक चीज़ याद रखना कि आपका क्वेश्चन है कि सर हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी होता है या डीसी होता है। तो क्वेश्चन इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना, जो ट्रांसफार्मर होगा इट इज़ ऑलवेज वर्किंग ऑन एसी सप्लाई। ठीक है, ये डीसी पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अभी जो हम लोग रोटेटिंग मशीन्स की बात करें, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज डीसी मशीन्स एंड एसी मशीन्स, राइट। तो जो एसी मशीन्स है और जो डीसी मशीन्स है, जो डीसी मशीन्स है वो किससे काम करेंगे, डीसी सप्लाई पे। ओके, जो डीसी मशीन्स है वो डीसी सप्लाई पे वर्क करेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, क्योंकि अभी तो मतलब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है और इसको किस तरह से होल्ड करना है, कैमरे को कैसे स्टैटिक पोजीशन में। तो जो डीसी मशीन्स है, डीसी मशीन्स टू टाइप्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। नो, जो ये हमारा एसी मशीन्स है, ये एसी मशीन्स, এই যে এসি মেশিনটা আছে এটা এটা দুটো টাইপ আছে। একটা আছে অসিনক্রোনাস মেশিন and another one is synchronous machines। okay, जो ये सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मशीन्स है, सिंक्रोनस मशीन्स और असिंक्रोनस बोलने का मतलब है कि जे অসিনক্রোনাস মেশিনস যে মিনিংটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে কি যে মেশিনটা আউটপুট স্পিড, और এখানে আমি দুটা স্পিডের কথা বলছি, আউটপুট স্পিড और ইনপুট স্পিড যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে ওই মেশিনটা হবে सिंक्रोनस मशीन्स। सिंक्रोनस मशीन्स बोलने का मतलब है कि योर आउटपुट स्पीड विल रिमेन सेम, मे बी इट विल फ्लक्चुएट अराउंड द 1% और 0.5%। अगर आप सिंक्रोनस मशीन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसका जो आउटपुट स्लिप है, दैट इज़ द वेरिएशन इन देयर आउटपुट रोटेशंस इज अबाउट 1 to 2%। ओके, सो आप इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट समझ सकते हो। बट इन इंडक्शन मोटर अगर आप बात करेंगे तो फिर इंडक्शन मोटर का स्पीड लोड के साथ वेरी होता है। अगर आप लोड ज़्यादा दे देंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, मीन्स दैट टॉर्क इज इंक्रीजिंग फर्दर टिल अ पॉइंट एंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ अगर आप स्पीड को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको लोड टॉर्क डिक्रीज करना पड़ेगा, देन आपको वहाँ से लोड को हटाना पड़ेगा। चलो, तो वो सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंक्रोनस मशीन्स और असिंक्रोनस मशीन्स जो है, असिंक्रोनस मशीन्स में हम बतलाए थे कि जो हमारा इंडक्शन मोटर आता है, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर, तो आपको इंडक्शन मशीन्स ही पढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो है सो इंडक्शन मशीन्स। इन इंडक्शन मशीन्स देयर आर टू टाइप्स। अब जो अभी हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। एक कौन सा है, एक है हमारा इंडक्शन मशीन्स सप्लाई ऑन सिंगल फेज, दैट इज सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज। इसको हम लोग ये जो फाई है ना, फाई इसको हम लोग फेज के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी सभी आप लोग इसको कंफ्यूज मत होना,
एंड सेकेंड वन इज 3 फेज, दैट इज 3 फेज। तो ये दोनों काम कर रहा है। अभी जो सिंक्रोनस मशीन है, दैट इज ये सिंक्रोनस मशीन है, ये जो है आपका दो टाइप का है, ओके। एक है सिंक्रोनस जनरेटर, ओके, एंड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये दो टाइप का है, ठीक है। एक है सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज, ओके। सेम केसेस यहाँ पे सिंगल फेज एंड 3 फेज। देखो एक चीज़ है कि आपको नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, आप जहाँ से भी देखो नोट्स मिल जाएगा, पर समझना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मशीन्स का एक पूरा आइडिया आपको मिल गया यहाँ पे कि हम अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं इसका एक, चूँकि आपको मे बी यू गाइस आर फेसिंग सो प्रॉब्लम, तो हम इसका एक फ़ोटो खींच के, फ़ोटो क्लिक करके आपको हम एक अलग से अभी हम ग्रुप में दे देंगे, तो आप इस चीज़ को समझोगे। अभी जो हम मशीन्स आपको मतलब इतना जो भी अभी हम समझाएं, ये एकदम बेसिक चीज़ है, इसको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप इस वीडियो को केयरफुली सुनो, हर एक चीज़ इसमें हम बतलाएं कि स्टैटिक क्या होता है, रोटेटिंग क्या होता है, जिसका आउटपुट रोटेटिंग करता हो, या फिर साफ्ट जो मशीन्स का होता है, आइदर इनपुट और आउटपुट दोनों रोटेट करेगा। स्टैटिक में किसी भी तरह का रोटेशन नहीं होता है, दैट इज ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर सिर्फ AC सप्लाई पे वर्क करता है। जो रोटेटिंग मशीन है, देयर आर 2 टाइप्स, one is the DC machine, another one is the AC machine. Further, DC machine is divided into 2 parts, DC generator and motor. Now AC machines divided into 2 types based on their speed criteria. स्पीड क्राइटेरिया हम लोग डिवाइड करते हैं, असिंक्रोनस मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन्स। असिंक्रोनस मशीन्स having those machines where the output speed or speed at shaft varies with changes in their loads. अगर हम लोग लोड में चेंजेस करेंगे तो फिर वो वहाँ पे स्पीड्स भी चेंजेस होते हैं। तो इस टाइप के मशीन्स में इंडक्शन मशीन्स आते हैं, जिसका सिंगल फेज, 3 फेज। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारा एक सिंक्रोनस मशीन्स की बात करें तो सिंक्रोनस मशीन्स हमारा 2 टाइप का है, और सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। आगे चल के एक और आता है सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं, तो उतना आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मोटर में भी स्पेशल केसेस मोटर है, तो बहुत सारा है, तो आपको सिर्फ इतना समझने का जरूरत है। सिंक्रोनस जनरेटर में सिंगल फेज, 3 फेज